کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبویا مجھ کو ہونے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا۔ ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا۔ آج کی یہ محفل سنی بورڈ آف انڈیا کے پرچم تلے پھر سے منعقد ہو رہی ہے، جس کے سروے سروا جناب صلاح الدین صاحب ہیں، شہاب الدین صاحب، دونوں ہم قافیہ لفظ ہیں جی، اچھا چلیے یہ بہتر ہے کہ وہ تھے، اس لیے جو ہے نادانستہ طور پہ ہی صحیح ان کا نام پہلے آ گیا، اور شہاب الدین صاحب جو کہ موجود ہیں جی، اس محفل کو آراستہ کرنے میں آپ کا بہت اہم تعاون رہتا ہے۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا کہ بڑی محفل ہو یا چھوٹی محفل ہو، اسے خون جگر سے آراستہ کیا جاتا ہے، اس میں جذبات و احساسات برابر کے شامل ہوتے ہیں، اور ایک آدھ محفلوں کا انعقاد کر لینا تو بہت آسان ہے، لیکن کسی بھی کام کو تسلسل عطا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اور اس مشکل کام کو بڑی آسانی کے ساتھ جناب شہاب الدین صاحب انجام دے رہے ہیں، اس کے لیے میں ان کا شکر گزار بھی ہوں اور انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خدا سے دعا گو ہوں کہ اللہ آپ کے جذبات کو مزید بلندیاں عطا کرے، تاکہ آپ اردو ادب کی خدمت، اس کی ترویج و اشاعت اور بقا کے لیے جو بھی کوشش ہو سکے اس کے لیے کوشاں رہیں۔ ایک بار پھر میں شہاب الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ محفل بڑی خوبصورت ہے، میرے خیال میں جو شرکاء ہیں، جو شعراء ہیں، وہ سب جو ہے اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھ رہے ہیں، اس لیے کہ اس محفل میں جتنی دیر ہم لوگ موجود رہیں گے اس وقت تک ذکر خیر ہوتا رہے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سب نذران عقیدت پیش کرتے رہیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گھنٹہ دو گھنٹہ جو ہم لوگوں کا گزرے گا یہ مسلسل عبادت میں گزرے گا۔ اس سے زیادہ خوش قسمتی کچھ نہیں ہو سکتی کہ زندگی کا جو لمحہ خدا کی عبادت میں گزر جائے، اس سے بہتر کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے آپ کو بھی خوش نصیب محسوس کرتے ہیں، اور دیگر تمام لوگوں کو بھی اس بات پر فخر کرنا چاہیے کہ ہمارا وقت کہیں نہ کہیں کٹ جاتا، لیکن شہاب الدین صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے یہ جو لمحہ گزرے گا یہ عبادت میں گزرے گا۔ آج کے اس محفل کی صدارت بہت ہی کہنا مشق شاعر، کئی شاگردوں کے استاد، کئی کتابوں کے مصنف جناب رفعت شیدا صدیقی صاحب فرما رہے ہیں، اور بہت شکریہ جناب قمر لکھنوی صاحب، جناب ثابت لکھنوی صاحب، جناب جلال لکھنوی صاحب اور جناب فہمی صاحب، تمام لوگ تائید فرما رہے ہیں۔ یقیناً جی جناب موج لکھنوی صاحب، تمام لوگ تائید فرما رہے ہیں۔ آج جن لوگوں کو کلام پیش کرنا ہم میں قمر لکھنوی صاحب ہیں، جناب جلال لکھنوی صاحب ہیں، جناب ثابت لکھنوی صاحب ہیں، جناب مسعود احمد فہمی صاحب اور جناب موج لکھنوی صاحب ہیں، ان تمام لوگوں کو کلام پیش کرنا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس شاعر سے اس بزم کی شروعات کی جائے، تاکہ یہ محفل شروع سے ہی بہت خوبصورت اور بہت پیارا بن جائے۔ میں جناب مسعود احمد فہمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں۔ ان کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی جو پرتیبھا ہے، جو کلا ہے، جو فنکاری ہے اور جو صلاحیتیں ہیں، اگر یہ اس پر ایمانداری کے ساتھ محنت کر لے گئے تو آنے والے وقت میں ان کا شہر لکھنؤ میں ایک مقام بن سکتا ہے۔ اس لیے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب مسعود احمد فہمی صاحب۔ السلام علیکم۔ صدر محترم کی اجازت نعت پاک کا مطلب حاصل کرتا ہوں۔ کوئی بھی نہیں ہے میرے
سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، میرے سرکار کے جیسا، میرے سرکار کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا، شہ ابرار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا، شہ ابرار کے جیسا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ ایک بار میں دو ٹکڑے ہوا چاند فلک پر، ہوا چاند فلک پر، ایک بار میں دو ٹکڑے ہوا چاند فلک پر، ہوا چاند فلک پر، ایک بار میں دو ٹکڑے ہوا بار میں دو ٹکڑے ہوا چاند فلک پر، انگلی کا اشارہ تھا وہ تلوار کے جیسا، تلوار کے جیسا، انگلی کا اشارہ تھا وہ تلوار کے جیسا، تلوار کے جیسا۔ اور یہ بھی شعر بطور خاص کہ مل جائے اسے کاش مدینے کی فضائیں، مدینے کی فضائیں، مل جائے اسے کاش مدینے کی فضائیں، مدینے کی فضائیں، مل جائے اسے کاش مدینے کی فضائیں، دل ہو گیا ہے اب میرے بیمار کے جیسا، بیمار کے جیسا، دل ہو گیا ہے اب میرا بیمار کے جیسا، بیمار کے جیسا۔ یہ بھی شعر دیکھیں کہ دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، منظر ہی نہیں ہے، دنیا میں کوئی دوسرا دنیا میں کوئی دوسرا منظر ہی نہیں ہے، اے شہر مدینہ تیرے دیدار کے جیسا، دیدار کے جیسا، اے شہر مدینہ تیرے دیدار کے جیسا، دیدار کے جیسا۔ آخر شعر مقطع سماعت فرما دیں کہ آقا سے شفاعت کی توقع لیے فہمی، توقع لیے فہمی، آقا سے شفاعت کی توقع لیے فہمی، توقع لیے فہمی، آقا سے شفاعت کی آقا سے شفاعت کی توقع لیے فہمی، ہر شخص کھڑا ہوگا گنہگار کے جیسا، گنہگار کے جیسا، ہر شخص کھڑا ہوگا گنہگار۔ جی حاصل کرتا ہوں، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی
بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، سرکار کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے میرے، کوئی بھی نہیں ہے میرے سرکار کے جیسا، لاؤ گے کہاں سے شہ ابرار کے جیسا، شہ ابرار کے جیسا۔ کیا کہنے جی بہت بہت شکریہ جناب بہت عمدہ جناب مسعود احمد فہمی صاحب، بہت خوبصورت کلام سے نوازا۔ جب بھی میں انہیں سنتا ہوں یا اس طریقے کی شعر و سخن کی گفتگو ہوتی ہے ان کے سلسلے میں، تو مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، ارادے جن کے پختہ ہوں نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے۔ بہت خوبصورت کلام سے نوازا جناب مسعود احمد فہمی صاحب نے، اور بہت شاندار آغاز کیا اس محفل کا۔ اب ہمیں امید ہے کہ جب آغاز اتنا اچھا ہوا ہے تو اس کا انجام کتنا خوبصورت ہوگا، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا جب ہم صدر مشاعرہ تک پہنچیں گے۔ ہماری فہرست میں جناب موج لکھنوی صاحب ہیں، ان کو کئی بار ہم نے مشاعروں میں سنا ہے، جب بھی ان کو سنا تو انہوں نے لوگوں کو چونکایا ہے، بہت متاثر کیا ہے۔ کوئی نہ کوئی شعر ایسا پڑ گئے جسے لوگوں نے اپنے حافظے میں محفوظ کیا اور ان سے متاثر ہوئے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب موج لکھنوی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ جناب موج لکھنوی صاحب۔ بہت اچھا کلام سننے کو ملا فہمی صاحب کا، جس پہ یہ تھا کہ لاؤ گے کہاں سے شہر ابرار جیسا۔ میں تو ان کی جگہ پہ یہ ہوتا تو جو ہو تو لے آؤ شہر ابرار۔ ملاحظہ کیجیے گا ایک قطع ہو جاتا ہے۔ حق کی نگاہ میں دیکھو یہ رتبہ نبی کا ہے، حق کی نگاہ میں دیکھو یہ رتبہ نبی کا ہے، مکہ نبی کو اور مدینہ نبی کا ہے، مکہ نبی کا اور مدینہ نبی کا ہے، پاکر لہد میں مجھے کو نکیرین لے کر، پاکر لہد میں مجھے کو نکیرین لے کر، پوچھو نہ کچھ یہ چاند بالا نبی کا، نہ کچھ یہ چاند بالا نبی کا، نگاہ میں دیکھو یہ رتبہ نبی کا۔ ملاحظہ کیجیے زندگی بس وہی سمجھو بخدا ہوتی ہے، زندگی بس زندگی بس وہی سمجھو بخدا ہوتی ہے، جو کہ اسلام کی حرمت پہ فدا ہوتی ہے، جو کہ اسلام کی
حرمت پہ فدا ہوتی ہے زندگی بس ہو کے سیراب ہو چمکتا ہے نگینے کی طرح جس پہ سرکار دو عالم کی عطا ہوتی ہے جس پہ سرکار دو عالم کی عطا ہوتی ہے زندگی بس وہی پیٹ بھرتا ہے وہ محنت کی کمائی کر کے ایسے انسان کی مقبول دعا ہوتی ہے ایسے انسان کی مقبول دعا ہوتی ہے زندگی بس وہی سمجھو بخدا ہوتی ہے جو اٹھاتے قدم رائے عمل سے ہٹ کر زندگی ان کے لیے ایک سزا ہوتی ہے زندگی ان کے لیے ایک سزا ہوتی ہے نبی صاحب بہت عمدہ کلام سے نوازا ابھی تک آپ کو داد و تحسین مل رہی ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت خوبصورتی اور بہت ہی کامیابی کے ساتھ آپ نے کلام پیش کیا یقیناً اس کے لیے میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں جناب جلال لکھنوی صاحب جو کہ عام طور پہ طنز و مزاح کی شاعری کرتے ہیں لیکن جب ان سے نعت سنیے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو بھی صنف سخن کو وہ جو جس صنف سخن پہ تباہ آزمائی کر لیں اس میں وہ کامیاب ہیں بہت خوبصورت ترنم ہے بہت ہی عمدہ لہجہ ہے بہت ہی خوبصورت شاعری ہے میں گزارش کر رہا ہوں جناب جلال لکھنوی صاحب سے کہ تشریف فیملی نے آج ایک میری پرانی نعت تھی اس کے لیے مجھ سے کہا کہ آپ وہ پڑھیے گا میں کوشش کرتا ہوں درخواست دی تھی انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا کہ کہا تھا بہت بہت شکریہ صدر محترم سے آپ سبھی سے اجازت نعت کا مطلع ہے اور کمال آپ کا پکڑ لیا جی ہاں ہماری دعوت حق میں الہی جان پیدا کر ہماری دعوت حق میں الہی جان پیدا کر ہماری دعوت حق میں الہی جان پیدا کر قبول عام ہو جائے تو ایسی شان پیدا کر قبول عام ہو جائے تو ایسی شان پیدا کر محبت کے شان سے سماعت فرمائیں ہوا ہے تذکرہ قرآن میں جن کا انہیں
صدیق سی صدیق سا ایمان پیدا وفا صدیق سی صدیق سا ایمان پیدا کر عمر کے دور میں جو روشنی ملتی تھی گھر گھر میں عمر کے دور میں جو روشنی ملتی تھی گھر گھر میں خدایا آج بھی وہ عدل کی میزان پیدا کر خدایا آج بھی وہ عدل کی میزان پیدا کر حیاداری کا پیکر جس طرح تھے حضرت عثمان حیاداری کا پیکر جس طرح تھے حضرت عثمان الہی ویسے ہی اس دور میں انسان پیدا کر الہی ویسے ہی ہر دور میں انسان پیدا کر علی کی تیغ لہرائی تو باطل تھر تھرا اٹھا علی کی تیغ لہرائی تو باطل تھر تھرا اٹھا ہمارے بازوؤں میں خدا وہ جان پیدا کر ہمارے بازوؤں میں خدا وہ جان پیدا کر محفل بڑی خوبصورتی کے ساتھ جناب رفعت شیدہ صدیقی صاحب کی صدارت میں اپنی منزل کی جانب رفتہ رفتہ بڑے ہی تذکر و احتشام کے ساتھ بڑھ رہی ہے. اس کے لیے میں ایک بار پھر جناب شہاب الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آپ کی شخصیت ہر حوالے سے بڑی معتبر اور مستند ہو. سماجی مسئلہ ہو, ملی مسئلہ ہو, غریبوں, یتیموں یا کوئی بھی پریشان حال شخص ہو, ہر مسئلے میں, ہر ضرورت میں, ہر وقت, ہر لمحہ آپ تمام لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے رہتے ہیں. اگر ایسے لوگ ہر محلے میں, ہر قصبے میں دو چار ہی ہو جائیں تو میرے خیال سے ملت کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. میں اس کے لیے جناب شہاب الدین صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے. کم سے کم دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے. پہلے چائے کا وقفہ. اچھا اچھا, چائے کے وقفے کے بعد اس محفل کے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے. پہلے دور میں جناب مسعود احمد فہمی صاحب, موج لکھنوی صاحب, جناب جلال لکھنوی صاحب نے بہت خوبصورت کلام پیش کیا اور اس محفل کو بہت ہی تاریخ ساز بنا دیا اس دور کو. آج کی یہ محفل
بہت ہی کوہنا مشق شاعر جناب رفعت شیدا صدیقی صاحب کی صدارت میں دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی ہے. جناب شہاب الدین صدیقی صاحب خان صاحب، جناب شہاب الدین خان صاحب، جناب شہاب الدین خان صاحب کی کاوشوں کی وجہ سے ہم سب یہاں جمع ہیں. میں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور جو میں نے شعر پڑھا تھا وہیں سے گفتگو پھر شروع کرتا ہوں کہ کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے، کم سے کم ایک دو مخالف بھی تو ہونے چاہیے. سب کو خوش رکھنے میں تم سب کے برے ہو جاؤ گے. سچ کو سمجھانے کی خاطر یہ دلیلیں، یہ جنون دیکھ لینا، ایک دن تم چڑچڑے ہو جاؤ گے. جس کی غیبت کر رہے ہو تم سبھی سر جوڑ کر آیا تو تعظیم میں اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ گے. آئیے اس شاعر کے حضور حاضر ہوا جائے جس کے لیے ایک دو لوگ نہیں بلکہ نہ جانے کتنے مستند اور معتبر لوگ ان کا نام جب آتا ہے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ شخصیت جناب ثابت لکھنوی صاحب کی ہے. وہ اپنے شعر و سخن سے اور اپنی خاکساری اور انکساری کے ذریعے سے پوری ادبی دنیا میں جانے اور پہچانے جاتے ہیں. آج ہماری اس محفل میں تشریف فرما ہے. میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں جناب ثابت لکھنوی صاحب. ناظم صاحب نے یہ تعریف میری ہے کہ میں ثابت تو نہیں ہوں، لیکن وہ صحیح ہے کہ بہت صحیح ہے. آپ کو سماعت فرمائیں. ابو بکر فاروق عثمان حیدر، ابو بکر فاروق عثمان حیدر، کروں بزرگوں کی تعریف کیوں کر. زمانے میں ان کا نہیں کوئی ثانی، زمانے میں ان کا نہیں کوئی ثانی، چمکتے ہیں یوں جیسے مہر منور. ابو بکر فاروق عثمان حیدر. کرتا ہوں، سماعت فرمائیں. رحمت بے حساب آتے ہیں، رحمت بے حساب آتے ہیں، رحمت بے حساب آتے ہیں. آپ اپنا جواب آتے ہیں، آپ اپنا جواب آتے ہیں. روشنی دو جہاں میں پھیلی ہے، روشنی دو جہاں میں پھیلی ہے. فخر صد آفتاب آتے ہیں، روشنی دو جہاں میں پھیلی ہے. فخر صد آفتاب آتے ہیں. تھے حجابات میں جو پوشیدہ، تھے حجابات میں جو پوشیدہ، تھے حجابات میں جو پوشیدہ. آج وہ بے حجاب آتے ہیں، آج وہ تھے حجابات میں جو پوشیدہ. آج وہ بے حجاب
से। अहल बातिल का सर झुकाने को, अहल बातिल का सर झुकाने को, अहल बातिल का सर झुकाने को, अहल बातिल का सर झुकाने को लेके हक की किताब आते, लेके हक की किताब आते, पढ़ रहे हैं मलक दुरूद व सलाम, पढ़ रहे हैं मलक दुरूद व सलाम, दहर में आ जनाब आते, दहर में आ जनाब आते हैं, सारे उशाक सर खमीदा हूँ, सारे उशाक सर खमीदा हूँ, अब रिसालत सारे उशाक सर खमीदा हूँ, सारे उशाक सर खमीदा हूँ, अब रिसालत ज़र्रे ज़र्रे में थी झलक जिनकी, 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 वो हसी लाजवाब आते हैं, वो हसी लाजवाब आते हैं। असातिज़ा की दुआएं मिल जाती हैं, ये हमारे लिए सरमाए हयात है। इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई चीज़ नहीं है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब साबित लखनवी साहब को, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में खूबसूरत कलाम से नवाजा, बहुत शुक्रिया। आइए थोड़ा और आगे बढ़ा जाए कि एक उम्मीद पसे दीदे तर जिंदा है, एक उम्मीद पसे दीदे तर जिंदा है, फाख्ता खून में लथपथ है मगर जिंदा है, हादसा ये था मेरा रस्ते सफ़र लूटा गया, मोजज़ा ये है मेरा शौक़ सफ़र जिंदा है। जिस शख्स का शौक़ सफ़र जिंदा रहता है वो शख्स दुनिया के किसी भी मैदान में हो वो कामयाब रहता है। प्रेमचंद ने कहा था कि हमारी कसौटी पर वो खरा उतरेगा जिसके यहाँ तफक्कुर हो, आज़ादी का जज्बा हो, हुस्न का जौहर हो, तामीर की रूह हो, ज़िंदगी की हकीकी रोशनी हो। मैं उस शायर को आवाज़ देने जा रहा हूँ जिसके यहाँ तफक्कुर भी है, आज़ादी का जज्बा भी है, हुस्न का जौहर भी है, तामीर की रूह भी है, ज़िंदगी की हकीकी रोशनी भी है। जब ये तमाम फिक्रें, तमाम चीज़ें एक जगह यकजा हो जाती हैं तो एक नाम उससे उभरता है, उसे हम सब जनाब कमर सीतापुरी कहते हैं। लखनऊ में 40 साल से हैं और उससे पहले भी इनका अदबी सफ़र रहा है जिससे हम सब आशना हैं। मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ जनाब कमर सीतापुरी साहब से कि तशरीफ़ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। बहुत अच्छी निज़ामत कर रहे हैं और चूँकि आप मुस्तकिल नाज़िम हैं इसलिए मैं 2 पते पढ़ रहा हूँ और इनको 2 मिनट में आप याद भी कर सकते हैं। सहले मुमतना में शायरी कैसे की जाती है, 2 पते सदर मोहतरम इजाज़त है। अब जरा 2 मिनट में कि असल तो देखिए 2 पतों में याद रखिए कि अपनी आँखों से नूर देखेंगे, अपनी आँखों से नूर देखेंगे जब दयारे हुजूर देखेंगे, अपनी आँखों से नूर देखेंगे जब दयारे हुजूर देखेंगे और दिल में इश्क़े नबी सलामत है हम मदीना ज़रूर। अपनी आँखों से नूर देखेंगे, अपनी आँखों से नूर देखेंगे जब दयारे हुजूर देखेंगे, वो दिल में इश्क़े नबी सलामत है हम मदीना ज़रूर देखेंगे।
दिल में इश्क़ नबी सलामत, हम मदीना जरूर देखेंगे। और ज़रा मौलाना कपिल अहमद साहब ये देखिए कि फजूल को, नबी को मुस्बत में कैसे तब्दील किया जाता है कि उनके कदमों की धूल हैं हम लोग, उनके कदमों की धूल हैं हम लोग, ये न समझो फजूल है। उनके कदमों की धूल हैं हम लोग, ये न समझो फजूल है हम लोग, और सारे आलम में हम चमकते हैं, जानिसारे रसूल हैं हम लोग। उनके कदमों की धूल हैं हम लोग, ये न समझो फजूल है हम लोग, सारे आलम में हम चमकते हैं, जानिसारे रसूल हैं। सारे आलम में हम चमकते हैं, जानिसारे रसूल हैं। सारे आलम में हम चमकते हैं, जानिसारे रसूल हैं। और नात के सदर मोहतरम फरमा देखे दो कि न छू सकेंगे जमाने के गम मदीने में, न छू सकेंगे जमाने के गम मदीने में, खुदा का खास है लुत्फ़ो करम मदीने में। न छू सकेंगे जमाने के गम मदीने में, खुदा का खास है लुत्फ़ो करम मदीने में। ये आरज़ू है कि बाचश्मे नम मदीने में, ये आरज़ू है कि बाचश्मे नम मदीने में सलाम पेश करें जाके हम मदीने में। ये आरज़ू है कि बाचश्मे नम मदीने में, ये आरज़ू है कि बाचश्मे नम मदीने में सलाम पेश करें जाके हम मदीने में, सलाम पेश करें जाके हम मदीने में। ये आरज़ू है कि बाचश्मे नम मदीने में सलाम पेश करें जाके हम मदीने में। और बता रहे हैं मदीने से लौटने वाले, बता रहे हैं मदीने से लौटने वाले, बड़ा सुकून है खुदा की कसम मदीने। बता रहे हैं मदीने से लौटने वाले, बता रहे हैं मदीने से लौटने वाले, बता रहे हैं मदीने से लौटने वाले, बड़ा सुकून है खुदा की कसम मदीने में, बड़ा सुकून है खुदा की कसम मदीने में। कि हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, बहुत संभाल के रखना कदम मदीने में। हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, बहुत संभाल के रखना कदम मदीने में, बहुत संभाल के रखना कदम मदीने में। हर एक राह में नक्शे कदम है आका के, बहुत संभाल के रखना कदम मदीने में, बहुत संभाल के रखना कदम मदीने में। और बहारें करने लगी मुस्कुरा के इस्तक़बाल, बहारें करने लगी मुस्कुरा के इस्तक़बाल, लो आ रहे हैं विदाए हरम मदीने। बहारें करने लगी मुस्कुरा के इस्तक़बाल, बहारें करने लगी मुस्कुरा के इस्तक़बाल, लो आ रहे हैं विदाए हरम मदीने में, लो आ रहे हैं विदाए हरम मदीने में। फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं, सिद्दीक़ी साहब, फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं जहां मुकीम है शाहे हुनम। फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं, फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं जहां मुकीम है शाहे हुनम मदीने में, जहां मुकीम है शाहे हुनम मदीने में, जहां मुकीम है, जहां मुकीम है शाहे हुनम मदीने। फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं, फरिश्ते लेके वहां पर दुरूद जाते हैं जहां मुकीम है शाहे हुनम मदीने में। और कमर के दिल की तमन्ना तो बस तमन्ना है, जी मोहम्मद, कमर के दिल की तमन्ना तो बस तमन्ना है, खुदा ने चाहा तो निकलेगा गम मदीने में। कमर के दिल की तमन्ना तो बस तमन्ना है, कमर के दिल की तमन्ना तो बस तमन्ना है, कमर के दिल की तमन्ना तो बस तमन्ना है, खुदा ने चाहा तो निकलेगा गम मदीने में।
हर एक राह में नक्शे कदम हैं आका के, हर एक राह में नक्शे कदम हैं आका के, बहुत संभल के रखना कदम नंबर में। बहुत बहुत सफीना जिसने साहिल से लगाया आदमियत का, हम उस इंसानियत के ना खुदा की बात करते हैं। सितारे फूल शबनम चांद सूरज बिजलियां शम्मे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि की बात करते हैं। एक हिंदू शायर जनाब दयानंद सक्सेना साहब ने कहा था कि जहां में कितने रसूल आए मगर न आया अजीम तुमसा, फहीम तुमसा, अलीम तुमसा, नईम तुमसा, हकीम तुमसा, हजार ढूंढा तमाम देखा किसी ने लेकिन कहीं न पाया, हसीन तुमसा, अमीन तुमसा, मुबीन तुमसा, वसीम तुमसा। मैंने ये अशआर इसलिए पढ़ा कि जनाब कमर लखनवी साहब के जी माफ चाहे कमर सीतापुरी साहब के अशआर सुनने के बाद मेरे लिए गुफ्तगू करना बड़ा मुश्किल था। इसलिए जो आपने जादूगरी दिखाई है, जो अशआर पेश किए हैं, यकीनन जब लफ्ज़ों को सलीका अता कर दिया जाए तो जनाब कमर सीतापुरी साहब बनते हैं और इनके अशआर बनते हैं। यकीनन तहत में अशआर पेश करना बड़ा मुश्किल होता है, आमतौर पे दादो तहसीन कम मिलती है, लेकिन अभी तक जिन शोरा ने कलाम पेश किया है मेरे ख्याल से सब पे फायद रहे हैं जनाब कमर सीतापुरी साहब। इसकी वजह थी ये थी कि ये हमेशा हर मुशायरे में, हर महफिल में इख्तिसार से तो काम लेते ही लेते हैं, लेकिन उस इख्तिसार में इतना तासुर छोड़ जाते हैं कि लोग अपने जहनों में आपके अशार महफूज करते हैं और जाकर अपने दोस्तों को सुनाते हैं, बताते हैं, और बहुत से अशार आपके हमारे जहनों में जब महफूज होते हैं तो उससे हमें एक फ़ायदा हासिल होता है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब कमर सीतापुरी साहब कि आप इतनी दूर से यहाँ तशरीफ़ लाए और आज की इस महफिल के हुस्न में जो खूबसूरती पैदा की है, यकीनन ये काबिल सताइश भी है, काबिल फ़ख्र भी है, काबिल तारीफ़ भी है, काबिल तहसीन भी है और आपकी ज़ात काबिल तक़लीद भी है। तमाम लोगों ने कलाम पेश कर लिया, हम लोगों को सदर मुशायरा तक पहुँचना है, लेकिन तो हमेशा आप लोगों ने हमारा तहत सुना है, तरन्नुम में पढ़ने की हमारी भी ख्वाहिश है, मतलब सीखने की ख्वाहिश है। और इस महफिल में हम इसीलिए आए ताकि थोड़ा सा सीखें, इसलिए सारे अपने लोग यहाँ मौजूद हैं जी, सारे शुक्रिया, सारे अपने लोग यहाँ मौजूद हैं और जनाब शहाबुद्दीन साहब की सरपरस्ती हम सबको हासिल है और ये हमें हौसला दे रही है। इस महफिल का फ़ायदा ये भी है कि हमारे जैसे मुब्तदी तलबा इस महफिल से सीख कर जब निकलेंगे तो न जाने कहाँ इसका सफ़र करेंगे, ये तो खुदा जानता है। मैं पेश करता हूँ बस तमाम लोगों को नाते पाक के अशार हैं, तो इसलिए ये तो नहीं कहूँगा कि बर्दाश्त कर लें, लेकिन जो खामियाँ हों उससे ज़रूर आगाह करें। पेश करता हूँ सदर मुहतरम से इजाज़त। परसों जो हमने नात पढ़ी थी वही पढ़ते हैं। ज़िंदगी में दूसरी बार टोपी दे दीजिए थोड़ा सा, ज़िंदगी में दूसरी बार मैं तरन्नुम में पढ़ रहा हूँ और बरजस्ता पढ़ रहा हूँ। पिछले मुशायरे में पढ़ा था, उसके बाद घर पर जाके एक बार भी मैंने प्रैक्टिस नहीं की, ये हमारी नादानी है। आज फिर पढ़ रहा हूँ, सुनिए जी जी। शफ़ीउल मुज़न्नबी कहिए, हबीबे किबरिया कहिए, शफ़ीउल मुज़न्नबी कहिए, हबीबे किबरिया कहिए, मेरे महबूब आका को, मेरे महबूब आका को इमाम
امام الانبیاء کہیے شفیع المذنبی کہیے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. شفیع المذنبی کہیے حبیب کبریا کہیے میرے محبوب آقا کو امام الانبیاء کہیے. مکین لامکاں ہیں زینت عرش معلا ہو. مکین لامکاں ہے زینت عرش معلا ہو. جنہیں محبوب رب کبریا صد مرحبا کہیے شفیع المذنبی کہیے حبیب کبریا کہیے. نکالا ہے جنہوں نے کفر کی دریا سے امت کو. بہت شکریہ جناب سیتاپوری صاحب، جناب کفیل صاحب، مولانا کفیل صاحب اور تمام احباب کا بہت شکریہ. میں اسی لیے ہمت کر رہا ہوں کہ تمام اپنے لوگ موجود ہیں. نکالا ہے جنہوں نے کفر کی دریا سے امت کو. نکالا ہے جنہوں نے کفر کی دریا سے امت کو. نہ کیسے کشتی ملت کا ان کو ناخدا کہیے شفیع المذنبی کہیے حبیب کبریا کہیے میرے محبوب آقا کو امام الانبیاء کہیے. آگے بڑھا جائے کہ سمندر کے مقابل میں کہاں پھر جھیل ہوتی ہے. بلندی کی مسافت تو ہزاروں میل ہوتی ہے. بڑی صحرا نوردی کی ضرورت ہوتی ہے صاحب تو پھر جا کر کہیں ایک شعر کی تکمیل ہوتی ہے. جب شاعر ایک مصرع کہتا ہے، ایک شعر کہتا ہے، خواہ وہ غزل ہو، نظم ہو، نعت ہو، حمد ہو، قصیدہ ہو، مثنوی ہو یا اس کے علاوہ دیگر اصناف سخن ہو، کوئی بھی صنف ہو، جب شاعر ایک مصرع اور ایک شعر کہتا ہے تو وہ ذہنی طور پر نہ جانے کہاں کہاں کا سفر کرتا ہے. پہاڑوں سے گزرتا ہے، وادیوں کی سیر کرتا ہے، پروتوں پر چڑھتا ہے، سمندروں میں تھپیڑے کھاتا ہے، تموج و بحر سے کھیلتا ہے. کبھی وہ ناخدا بن جاتا ہے، کبھی سفینہ بن جاتا ہے، کبھی پتوار بن جاتا ہے. جب ان تمام مراحل سے گزرتے ہوئے یہاں تک پہنچتا ہے تو وہ خاکساری، انکساری اور اعلیٰ ظرفی کا طرح امتیاز بن جاتا ہے. آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہم آج کے صدر محفل جناب رفعت شیدہ صدیقی صاحب کی گفتگو کر رہے ہیں. میں گزارش کر رہا ہوں صدر مشاعرہ جناب رفعت شیدہ صدیقی صاحب سے کہ اپنے کلام سے نوازیں اور اپنی شاعری سے. ہمارے بہت ہی محترم جناب عاصم کاکوری صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی ذہانت میں قابلیت میں اور اضافہ کرے. بہت خوبصورت نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے اور لفظوں کی بازیگری، لفظوں کے واقعی یہ ایک بازیگر ہیں
और मैं समझता हूँ कि बहुत ही खूबसूरत तसलसल के साथ जो अल्फाज आते हैं वो इनके सामने हाथ बांधे खड़े होते हैं और कहते हैं कि मुझे इस्तेमाल कर दें। मोतियों की तरह से अल्फाज का इस्तेमाल जनाब आसिम काकोरी साहब की निज़ामत में मिलता है। बदरजा अतम एक बात और भी है कि तमाम शोराए कराम जो यहाँ पर बैठे हैं उनका लिहाज खातिर ख्वाह और उनके जो मदारिज हैं मरातिब हैं उनका भी लिहाज रखते हुए उन्होंने शुरू से आखिर तक इस बात का लिहाज रखते हुए इस महफिल को कामयाबी और तरक्की से हमकिनार किया है और अभी तक वो गामज़न है अपने इसी मिशन पर। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। साथ ही जनाब शहाबुद्दीन खान साहब को कि जिन्होंने ये खूबसूरत महफिल यहाँ पर आरास्ता की सजाई। और ये आज की बात नहीं है बल्कि पूरे मुहर्रमुल हराम के महीने में तकरीबन 10 दिन तक ये सिलसिले जो हैं जारी और सारी रहते हैं। इसके अलावा रबीउल अव्वल के महीने में भी 12 दिन तक तकरीबन यहाँ पर ये महफिल नूर के हवाले से नात मद साहबा की महफिलें आरास्ता होती रहती हैं। और ये महफिलें जो यहाँ पर आज आरास्ता हो रही हैं हमारे मोहतरम सलाहुद्दीन हैदर साहब जिन्हें सलाहुद्दीन अबू बकर भी कहते थे, जनाब शहाबुद्दीन खान साहब के बड़े भाई जिनका तकरीबन 2 साल पहले आज के लिए इंतकाल हो गया। मिल्लत एक बहुत बड़े मुफक्किर से और बहुत बड़े अदीब से, बहुत सच्चे और अच्छे मुसलमान से महरूम हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी साहब, सलाहुद्दीन खान साहब जो कि अबू बकर के नाम से भी जाने जाते थे, सिर्फ यही नहीं कि सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया का उन्होंने यहाँ पर इनेकाद किया बल्कि लखनऊ की बहुत सी तंजीमें दारुल यतामा, मुमताज़ दारुल यतामा में भी बड़े आला ओहदों पर फाइज रहे। इसके अलावा इस्लामिया कॉलेज के मैनेजमेंट में भी वो रहे और जितने भी लखनऊ के कब्रिस्तान हैं मैं समझता हूँ उन सब में उनका हिस्सा रहा और उनकी इंतज़ामिया में वो शामिल रहे और बड़े ही बावकार ओहदों पर फाइज रहे। इनके अलावा जितने भी अखबारात निकलते हैं उनके जो एडिटर हजरात बड़े बड़े उस्मान गनी साहब, इशरत अली सिद्दीकी साहब जैसे लोग, अहमद इब्राहिम अलवी साहब जैसे, ये बड़े बड़े नाक़िदीन लोग भी उनकी इज्जत करते थे, उनको कद्र व मंज़िलत की निगाह से देखते थे। तो वो बहुत ही आला ज़र्फ़ किस्म के बहुत अच्छे और नेक इंसान थे। मुझे एक फ़ख्र ये हासिल है कि मुझे उनसे क़ुर्बत मेरी हासिल थी और वो अक्सर हम लोग आपस में बैठ कर बात करते थे। आखिरी दिनों में जनाब सलाहुद्दीन साहब जबकि पैर में उनकी बहुत सख्त तकलीफ थी, शगाफ सा था, मैं जुमे की नमाज़ पढ़ के आया था, वहाँ पर बैठ गया था, घर भी नहीं गया था, लेकिन वो अपनी रोज़ान बयान कर रहे थे लेकिन उसमें कोई दर्द नहीं था। यानी कि अपने दर्द का कोई किस्सा नहीं था, अपने जिस्म के दर्द का कोई वाक़या नहीं था उनके ज़माने, बल्कि वो वाक़या जो था वो मिल्लत का था, कौम का था कि हमारी कौम जो है वो उसकी इस्लाह कैसे की जाए, वो दर्द था उस शख्स के। जबकि मैं देख रहा हूँ कि उनके पैर में दर्द इतनी सख्त तकलीफ है कि वो कोई दूसरा हो तो वो कराह के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने उसका जिक्र नहीं किया बल्कि कौम के हमसे कहने लगे शैतान है। अब मैं एक सोच रहा हूँ सूफ़ी मिशन जो है कायम किया और उस सूफ़ी मिशन के लिए हमें काम किया और उसका उन्होंने लाएअमल में तैयार किया था और खुदा ने उन्हें बहुत जल्दी बुला लिया। बहुत नेक आदमी थे, नेक आदमी को तो अल्लाह ताला वैसे भी जल्दी बुला लिया करते, तो वो उनको बुला लिया और वो मिशन भी था वो अधूरा रह गया। तो मुझे बहुत अक़ीदत थी, मोहब्बत थी। मैं अल्लाह तबारक तआला के हुज़ूर आप सभी हज़रात से दुआ गुजारिश करूँगा कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। जनाब
सलाहुद्दीन खान साहब, सलाहुद्दीन अबू बकर साहब, सलाहुद्दीन हैदर साहब, जिन नामों से वो जाने जाते थे, जिनके दिल में वाकई मिल्लत का, कौम का दर्द था, और वो हमारे लिए एक नुमाइंदा शख्स थे। उनके बेटे हसन साहब यहाँ पर तशरीफ फरमा, साजुद्दीन हसन साहब, ये तो बहुत बच्चे हैं हमारे। और समझिए इनका तो सेहरा भी मैंने लिखा था। जिस वक्त मैं पाकिस्तान जाने वाला था तो इत्तेफाक से मैं उनकी शादी में शरीक नहीं हो पाया, लेकिन वो मैं लिख के गया था, वो भी आज की किताबी शक्ल में मौजूद है। तो बहरहाल ये भी बहुत नेक और फाल आदमी है, और मैं समझता हूँ कि शायद हम करीब कुछ ये उनके मिशन के सिलसिले में काम करें। जब इनको मोहलत मिलेगी और वक्त मिलेगा तो ये जनाब शहाबुद्दीन साहब के साथ मिलकर उस मिशन को भी आगे बढ़ाएंगे। जो सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से ये जो प्रोग्राम चल रहा है उसमें, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। और मैं जनाब मसूद अहमद फहमी साहब को भी मुबारकबाद, उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनके तवस्सुत से, उनके हवाले से सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम जो है आज पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। कल काफ़ी लाइव इसका टेलीकास्ट भी हुआ था और ये काफ़ी दूर तक फैल गया। मैंने पाकिस्तान में इसको साइन कर दिया, तो वहाँ के भी चैनल्स भी थे, उन्होंने दिखाया सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया का ये प्रोग्राम होता। तो बहरहाल मुबारकबाद के मुस्तहक हैं जनाब मसूद अहमद फहमी, जवां साल शायर और राइटर। इनके अलावा जनाब जलाल साहब बहुत अच्छे नाज़िम भी हैं, बहुत अच्छे शायर भी हैं और इंसान भी बेपनाह बहुत अच्छे हैं। जनाब साबित साहब, मैं क्या तारीफ़ करूं, बहुत अच्छे बुज़ुर्ग हैं, बहुत खलीक इंसान हैं और बहुत अच्छे शायर हैं। तरन्नुम में और ताहत में दोनों में, कोई नज़्म हो, गज़ल हो, कोई भी सिंफ हो, उसमें बहुत अच्छा कलाम पेश करते हैं। हमारे कमर सीतापुरी साहब को तो जानता हूँ उनको बहुत नहीं, हाँ मैं बता। तो कमर साहब जो है ये बहुत अच्छे से मैं इनसे वाक़िफ़ हूँ, बहुत ही खलीक आदमी है, किसी की आँख में इनसे आंसू नहीं देखा जाता। और यही वजह है कि मैं समझता हूँ कि ये यहाँ सिर्फ अवामी तौर पर खिदमत नहीं करते, बल्कि लखनऊ ज़िला जेल जो है उसके जो कैदी हैं उन तक की खबर के लिए करते हैं और वहाँ तक रसाई वो जो रसद पहुँचाते हैं। ये बहुत बड़ा काम है। हमारी मिल्लत को, कौम को 1000, 2000, 10,000 लोगों की ज़रूरत नहीं, ऐसे 2-4 आदमी कि जो वाकई मिल्लत का दर्द रखते हैं उनकी ज़रूरत है कि वो उसके लिए काम कर सके और तन मन धन से आगे बढ़ सके, सीना सिपर हो सके और बगैर किसी खौफ व खतर के साथ। तो वो उसमें एक नाम जनाब कमर सीतापुर का मेरी याददाश्त में और मेरे साथ है। और जनाब आसिम कासुका कोलवी के बारे में मैं बता चुका हूँ। कफील साहब, मतलब मौलाना कफील अशरफ साहब, अहमद साहब, अशरफ साहब भी इन्हीं से मुमासलत रखते हैं, वो भी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। कफील अशरफ साहब, हाँ वो बहुत मुझे चाहते हैं। अपनी अक्सर तकारीर में मैं अगर बैठा हूँ तो मेरा जिक्र जरूर करते हैं। लेकिन ये कफील साहब जो हैं, कफील अहमद साहब, इतने मुखलिस साहब, उनको तो खैर बुलाने के लिए कभी कभी तय भी करना पड़ता है कि हजरत ये 5000 से कुछ कम दे दीजिए क्योंकि गरीब लोग हैं इस वजह में, समझा। लेकिन ये कभी इन्हीं ने आज तक ये नहीं कहा कि मुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, बल्कि ये कहते हैं कि बताइए मैं क्या लेकर आ जाऊँ। तो खुद ये मतलब बहुत मेहमान नवाज भी हैं, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं और कौम के अच्छे खिदमतगार हैं। तो बहरहाल मैं क्या करूँ, 2-4 शेर पेश कर देता हूँ हमारे। कमर अच्छा ठीक है, बिल्कुल। जनाब मोहित रहबर साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, उनका तारुफ, उनकी शख्सियत है, उनका कलाम है, उनका अंदाज, उनका तरन्नुम है, उनका रंग है, उनका आहंग है। बहुत शुक्रिया साहब। नाते पाक के चंद अशार बराए शिरकत मुलाज़ा फरमा दें। रब के मिलने का पता है सरवर कौनो मकान, रब के मिलने का पता है
है सरवर कौनो मकान, रहबर राहे खुदा है सरवर कौनो मकान, रब के मिलने का पता है सरवर कौनो मकान। शेर मुलाजा फरमाए कि देखिए तो पढ़ के तारीख़ रिसालत एक बार, देखिए तो पढ़ के तारीख़ रिसालत एक बार, इब्तिदा ता इंतहा है सरवर कौनो मकान, इब्तिदा ता इंतहा है सरवर कौनो मकान। ये शेर उस हदीस की रोशनी में कहा गया है जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबोगल के दरमियान थे। देखिए तो पढ़ के तारीख़ रिसालत एक बार, इब्तिदा ता इंतहा है सरवर कौनो मकान, इब्तिदा ता इंतहा है सरवर कौनो मकान। मनक़बत के शेर मुलाज़ा फरमाएं कि यूं तो मिसले आईना है सब सहाबा अहले बैत, यूं तो मिसले आईना है सब सहाबा अहले बैत, आईनों का आईना है सरवर कौनो मकान, आईनों का आईना है सरवर कौनो मकान, यूं तो मिसले आईना है सब सहाबा अहले बैत, आईनों का आईना है सरवर कौनो मकान, आईनों का आईना है सरवर कौनो मकान। एक कदम उठता नहीं है रब की मर्जी के खिलाफ, एक कदम उठता नहीं है रब की मर्जी के खिलाफ, इस कदर हक आशना है सरवर कौनो मकान, इस कदर हक इस कदर हक आशना है सरवर कौनो मकान। वो नामुकम्मल ही रहेगा हर अमल उनके बगैर, नामुकम्मल ही रहेगा हर अमल उनके बगैर, रूह तस्लीम रज़ा है सरवर कौनो मकान, रूह तस्लीम रज़ा है सरवर कौनो मकान, नामुकम्मल ही रहेगा हर अमल उनके बगैर, रूह तस्लीम रज़ा है सरवर कौनो मकान, रूह तस्लीम रज़ा है सरवर कौनो मकान। ये भी शेर मेराज के हवाले से मुलाज़ा फरमाएं। ये शरफ
ان کے سوا حاصل نہ کر پایا کوئی، یہ شرف ان کے سوا حاصل نہ کر پایا کوئی، ظاہر عرش اولا ہے سرور قوم کا، ظاہر عرش اولا ہے سرور قوم کا، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، عرش تک محو دعا ہے سرور قوم کا، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، اپنی امت کو جہنم سے بچانے کے لیے، عرش تک محو دعا ہے سرور قوم کا، عرش تک محو دعا ہے سرور کون مقام۔ منقبت کے اشعار ملاحظہ فرمائیں، اذ ہما فی الغار جس کی شان میں نازل ہوا، اذ ہما فی الغار جس کی شان میں نازل ہوا، اس کی یاری پر فدا ہے سرور قوم کا، اس کی یاری پر فدا ہے سرور کون مکان، آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھے کس کی آخر ہے مجال، آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھے کس کی آخر ہے مجال، جب عمر کے ہم نوا ہے سرور قوم کا، جب عمر کے ہم نوا ہے سرور قوم کا، آنکھ اٹھا کر کوئی دیکھے کس کی آخر ہے مجال، جب عمر کے ہم نوا ہے سرور کون مقام۔ منقبت کا یہ بھی شعر دیکھیں کہ اوڑھ کر عثمان جس کو صاحب ایثار ہیں، اوڑھ کر عثمان جس کو صاحب ایثار ہیں، صبر کی ایسی ردا ہے سرور کون مکان، صبر کی ایسی ردا ہے سرور کون مکان۔ یہ منقبت کا آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ حیدر کرار نے بچپن سے ہی سمجھا ہے یہ، حیدر کرار نے بچپن سے ہی سمجھا ہے یہ، ایک متاع بے بہا ہے سرور کون مکان، ایک متاع بے بہا ہے سرور کون مقام۔ مقام لازم کہ عظمتیں ان کی سمجھ پائے گا رہبر کوئی کیا، عظمتیں ان کی سمجھ پائے گا رہبر کوئی کیا، فکر سے جب ماورا ہے سرور کون مکان، فکر سے جب ماورا ہے سرور کون مکان، رب سے ملنے
दाता है सरवरे कौनो मकान, रहबरे राहे खुदा है सरवरे कौनो। बहुत उम्दा जनाब बहुत उम्दा जनाब मोहित रहबर साहब, यकीनन जी 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 बहुत खूबसूरत कलाम से नवाजा जनाब मोहित रहबर साहब ने। ऐसे तो इनके हर शेर पर अगर गुफ्तगू की जाए तो बहुत ज़्यादा वक्त दरकार है, लेकिन उन्होंने एक शेर पढ़ा जैसानियस ने इज़्मा फिलगार का जो फ़लसफ़ा था, जो वाक़या था, जो इतिहास और जो तारीख़ थी, एक शायर उसे कैसे दो मिसरों में सलीक़े से पेश कर देता है, जिसे मुक़र्रिर 2-2 घंटे लगाता है। तारीख़ साज उसे न जाने कितने सफ़हात में पेश करता है। एक शायर का कमाल ये होता है कि उसे 2 लफ्ज़ों 2 मिसरों में एक शेर में इतनी खूबसूरती के साथ पेश कर देता है कि सदियों का इतिहास, सदियों की तारीख़ वो 2 मिसरों में पेश कर देता है, और उसका असर ये होता है कि उससे नस्लें फ़ायदा उठाती हैं। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ जनाब मोहित रहबर साहब से। शहाबुद्दीन साहब के बड़े भाई सलाहुद्दीन साहब का एक अहम कारनामा रहा है नात के सिलसिले में, कौमी और मिली काम के सिलसिले में। उन्होंने जिस काम को, जिस मिशन को, जिस बुलंदियों पर छोड़ा है, अब उसकी जिम्मेदारी उनके बेटे जो हमारे सामने सादुद्दीन हसन साहब हैं, उनके कांधों पर है। देखना यह है कि वालिद साहब के मिशन को वो कहाँ तक ले जाते हैं। इंसान के लिए सबसे कीमती सरमाया न घर होता है, न बंगला होता है, न गाड़ी होती है, न ज़मीन जायदाद होता है। सबसे अहम सरमाया जो किसी शख्स की ज़िंदगी का होता है वो होता है नेक और सालेह औलाद। जनाब सादुद्दीन साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनकी यकीनन हम ज़्यादा तो नहीं जानते हैं, लेकिन इनके अंदर वो सिफ़ात ज़रूर हैं जो उनके चचा मोहतरम उनकी तारीफ़ कर रहे हैं। उम्मीद है कि जिस सलाहुद्दीन साहब ने जिस मिशन को आगे बढ़ाया था वो सीरियस होकर उस मिशन को आगे बढ़ाएंगे, बल्कि मिली, समाजी और रिफाही कामों को में हमेशा पेश रहेंगे जिस तरीके से इनके वालिद मोहतरम थे और इनके चचा हैं। अब मैं फिर सदर मुशायरा जनाब रफ़त शहदा सिद्दीकी साहब के हुजूर हाजिर हो रहा हूँ। उन्होंने गुफ्तगू कर ली है, अब उन्हें अपना कलाम पेश करना है कि कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। बहुत सारे लोगों का तारुफ तो मैंने ज़रूर किया था। एक बहुत अहम नाम रहा जा रहा था, वो है जनाब मौलाना लखनवी साहब। ये नाम अगर मैं ना लेता तो वाकई की दिलदारी होती, और खुदा मुझे कभी माफ़ नहीं करता। जनाब मौलाना लखनवी बहुत ही नेक और सालेह तबीयत के मालिक हैं। बहुत अच्छे अशार कहते हैं, बहुत खूबसूरत अंदाज में कहते हैं। इनका तरन्नुम भी ऐसा है कि लोग उसे सुनना चाहते हैं, और मैं समझता हूँ कि जिस महफिल में ये नगमा सरा होते हैं, ये नात पेश करते हैं, ये गज़ल पेश करते हैं, तो लोग चलता हुआ मुसाफिर में ठहर कर उसे सुनने पर मजबूर हो जाते हैं। तो जनाब मौलाना लखनवी साहब ये हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत सारी बातें हो गई, अब मैं चंद शेर वापस की खिदमत में पेश करता हूँ। जनाब आसिफ काकोरी ने अभी कहा कि शेर जो है उससे उसकी वजाहत की। मोहित रहबर साहब ने बहुत अच्छा कलाम पढ़ा। ज़ाहिर सभी शोरा ने बहुत ही खूबसूरत अशार पेश किए, और हकीकत में यह है कि बहुत बड़ा फ़लसफ़ा जो है वो शायद एक शेर में बयान कर देता है। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो दर्द क्या चीज़ है, क्या उसका मज़ा होता है, उससे पूछो कि जो दिन भर का थका होता है। दर्द क्या चीज़ है, क्या उसका मज़ा होता है, उससे पूछो कि जो दिन भर का थका होता है। वो शेर क्या चीज़ है, शायर के जिगर से पूछो। शेर क्या चीज़ है, शायर के जिगर से पूछो। दो लकीरों में लहू दिल का भरा होता है। क्या कहना, शेर क्या चीज़ है, दो लकीरों में लहू दिल का, शायर के जिगर से पूछो। दो लकीरों में लहू दिल का भरा होता है।
मैं वापस आ रहा हूँ नातो मनकबत की तरफ से। समाज फरमाए मत साहबा के हवाले से दो शेर पेश कर रहा हूँ। मुलाजा फरमाए क्या साहब मोहम्मद सल्ले अला सिद्दीक उमर उस्मान वाली। साहब मोहम्मद सल्ले अला सिद्दीक उमर उस्मान वाली बरहक है ये सब कहता है खुदा। सिद्दीक उमर उस्मान बरहक है ये सब कहता है खुदा। सिद्दीक उमर उस्मान वाली। और बुलबुल ने पपीहे से पूछा साथी है नबी के कौन बता। बुलबुल ने पपीहे से पूछा साथी है नबी के कौन बता। शहदा वो चहक कर बोल उठा सिद्दीक उमर उस्मान। बुलबुल ने पपीहे से पूछा साथी है नबी के कौन बता। शहदा वो चहक कर बोल उठा सिद्दीक उमर उस्मान वाली। सिद्दीक उमर उस्मान वाली। दो शेर में पेश कर रहा हूँ। ये नुज़ूल कुरान के सिलसिले में समाअत फरमाए कमर भाई जनाब शाह साहब आप तवज्जो फरमाए। ज़रिया रूहुल अमी थे नाफिज़ खुदा का फरमान हो रहा था। ज़रिया रूहुल अमी थे नाफिज़ खुदा का फरमान हो रहा था। ज़रिया रूहुल अमी थे नाफिज़ खुदा का फरमान हो रहा था। अजीम खिलकत की रहबरी का जहां सामान हो रहा था। अजीम खिलकत की रहबरी का जहां सामान हो रहा था। ज़रिया रूहुल अमीन का मतलब जिब्रील अलैहिस्सलाम के बारे में उनका लक़ब है। ज़रिया रूहुल अमीन थे नाफिज़ खुदा का फरमान हो रहा था। अजीम खिलकत की रहबरी का जहां सामान हो रहा था। तमाम आलम महक रहा था पयाम इक़रा की निकहतों से। तमाम आलम महक रहा था पयाम इक़रा की नकहतों से। रसूल उम्मी पजब हिरा में नुज़ूल कुरान हो रहा था। रसूल उम्मी पजब हिरा में नुज़ूल कुरान हो रहा था। तमाम आलम महक रहा था पयाम इक़रा की नकहतों से। रसूल उम्मी पजब हिरा में नुज़ूल कुरान हो रहा था। ज़रिया रूहुल अमी थे नाफिज़ खुदा का फरमान हो रहा था। जिसको चाहे मुलाज़ा
जिसको चाहे उसी का चिराग जलता है, वो जिसको चाहे उसी का चिराग जलता है, कब उसके आगे किसी का चिराग जलता है। वो जिसको चाहे बहुत अच्छा मतलब है, उसी का चिराग जलता है, कब उसके आगे किसी का चिराग जलता है। और रिसालते अज़ली का चिराग जलता है, रिसालते अज़ली का चिराग जलता है, जहां में नाते नबी का चिराग जलता है, जहां में नाते नबी का चिराग जलता है। और ये रंगो नूर जो है आमना के आंगन में, ये रंगो नूर जो है आमना के आंगन में जमाले मुस्तफवी का चिराग जलता है। ये रंगो नूर जो है आमना के आंगन में जमाले मुस्तफवी का चिराग जलता है। और हर एक बज़्म नबी के जिक्र से रोशन, हर एक बज़्म नबी के जिक्र से रोशन। हर अंजुमन में नबी का चिराग जलता है, हर अंजुमन में नबी का चिराग जलता है, हर अंजुमन में नबी का। कमर साहब देखिएगा वही भाई कि हलीमा जब से मोहम्मद को तुमने गोद लिया, हलीमा और साहब जब से मोहम्मद को तुमने गोद लिया, तुम्हारे घर में तो घी का चिराग जलता है। हलीमा जब से मोहम्मद को तुमने गोद लिया, हलीमा जब से मोहम्मद को तुमने गोद लिया, तुम्हारे घर में तो घी का चिराग जलता है। हलीमा जब से मोहम्मद को तुमने गोद लिया, तुम्हारे घर में तो घी का चिराग जलता है। और वफा की राह में सैयद है हजरत सिद्दीक, वफा की राह में सैयद है हजरत सिद्दीक, उन्हीं की राहबरी का चिराग जलता है। वफा की राह में सैयद है हजरत सिद्दीक, उन्हीं की राहबरी का चिराग जलता है। और अंधेरे जुल्म के हरगिज ठहर नहीं सकते, शेर देखिएगा, अंधेरे जुल्म के हरगिज ठहर नहीं सकते, यहाँ उम्र से जरी का चिराग। अंधेरे जुल्म के हरगिज ठहर नहीं सकते, यहाँ उम्र से जरी का चिराग, यहाँ उम्र से जरी का चिराग जलता है। और ये शेर भी देखिएगा कि सखावतों के जजीरों में रोशनी के लिए, सखावतों के जजीरों में रोशनी के लिए खबर करो कि गनी का चिराग जलता है। सखावतों के जजीरों में रोशनी के लिए खबर करो कि गनी का चिराग जलता है, खबर करो कि गनी का चिराग जलता है। और अब वो शेर जिसके लिए हुक्म हुआ है, खबर करो कि गनी का चिराग जलता है। और ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से वली का चिराग। ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है अली, अली के घर से वली का चिराग जलता है, अली के घर से वली का चिराग जलता है। अमर साहब, ज़ियाए अहले तरीक़त का सिलसिला है, अली के घर से वली का चिराग जलता है। और ये मक्ता में मुलाज़ा फरमा ले कि ये रोशनाई भी शहदा है रोशनी की तरह, ये रोशनाई भी शहदा है रोशनी की तरह, कलम से नाते नबी का चिराग। ये रोशनाई भी शहदा है रोशनी की तरह, शहदा का सर्फ बहुत अच्छा, कलम से नाते नबी का चिराग जलता है। ये रोशनाई भी शहदा है रोशनी की तरह, कलम से नाते नबी का चिराग जलता है। वो जिसको चाहे
वो जिसको चाहे उसी का चिराग जलता है, कब उसके आगे किसी का चिराग जलता है, कब उसके आगे किसी का चिराग। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया नवाज। अब मैं आज के इस महफिल के सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के सर्वे सर्वा इसको सजाने, संवारने, बनाने और निखारने में जिनका अहम किरदार रहता है वो है जनाब शहाबुद्दीन साहब। मिली, समाजी और फलाही कामों में हमेशा आगे रहते हैं। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आने वाले तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। जनाब शहाबुद्दीन साहब। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा व सलामुन अला इबादिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद। क़ाल इन्नमल अमालु बिन्निय्यात। हाज़िरीन जलसा, बहुत ज़्यादा लंबी गुफ्तगू की का वक्त तो नहीं है कि बहुत लंबी चौड़ी कोई तकरीर की जाए, और हालांकि हमारे शुअराए कराम हज़रात ने सारे मौज़ूआत पर रोशनी डाली है और इन लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। इन लोगों से बहुत कुछ इस्तिफ़ादा हासिल करता हूँ। बहैसियत तालिब इल्म के हाजिर होता हूँ ताकि मुझे भी इन लोगों से फैज़ मिलता रहे और तमाम वो चीज़ें हासिल हो जाएं जो मेरे इल्म में ना हो। इल्म एक समंदर है, और ये जो महफिल नूर है जिसका इनेकाद हज़रत शहाबुद्दीन खां साहब की सरपरस्ती में मुस्तकिल तौर पर चला आ रहा है, ये जलसा महफिल नूर के नाम से जो महफिल सजती है, इसमें एक नीयत का मामला ये है कि हम सब जो लोग यहाँ पर हाजिर होते हैं उनकी अपनी नीयत अखलास की बुनियाद पर हाजिर होते हैं, और नीयतों पर अल्लाह तबारक व तआला फैसले फरमाते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस शरीफ है इन्नमल अमालु बिन्निय्यात, कि बेशक तमाम आमाल का दारो मदार नीयत पर है। तो नीयत जैसी होती है अल्लाह तबारक व तआला वैसे ही फैसले फरमाते हैं, उसके असरात भी वैसे ही होते हैं, उसके फयूज़ व बरक़ात भी वैसे ही होते हैं, उसकी चीज़ें भी वैसी ज़ाहिर होती हैं। तो यहाँ पर ये जो महफिल नूर होती है, बहुत कलील और बहुत कम लोग जमा होते हैं, मगर ये कलील और कम लोगों की तादाद जो होती है वो उन लोगों में और मुखलिसीन में शुमार होती है जिनके बारे में कुरान कहता है वक़लीलुम मिन इबादिय अश-शकूर, कि बेशक शुक्रगुजार बंदे अल्लाह के बहुत कलील हैं। मैं समझता हूँ कि मेरा अपना नज़रिया ये है कि मुखलिसीन की ये जमात है जहाँ बहुत बड़ा मजमा नहीं है, बहुत बड़ी महफिल नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम नहीं है जिसको लोग बहुत दूर से समझें कि बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, मगर यहाँ पर जो लोग जमा होते हैं वो अपने आप में एक बड़ी शख्सियत है, अपने आप में बहुत बड़ा अपने आप में एक बहैसियत रहबर के आप समझें, बहुत बड़े क्या कहते हैं शायर के एतबार समझें, जिस नज़रिए से आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप में हर एक शख्स शख्सियत के तौर पे आता है और उसका अपना एक मकाम है। दुनिया उनको अपने नाम से जानती है। जो लोग हिंदुस्तान के गोशे गोशे में शुअरा कराम जाते हैं, हमारे बड़े भाई रफ़त शहदा सिद्दीकी साहब, जनाब मौलाना कमर सीतापुरी साहब, और हमारे नौजवान शुअरा में मोहित रहबर साहब, फहमी साहब, मौज लखनवी साहब, जलाल लखनवी साहब, दीगर और हमारे बुजुर्ग शायर साबित लखनवी साहब वगैरह वगैरह, ये सब आसिम काकोरी साहब माशाल्लाह, मैंने पहली बार इनका कलाम सुना कि बहुत अच्छा कलाम, बड़ी अच्छी खूबसूरत नज़ामत के मालिक और बड़ी सलाहियतों के मालिक, जिन्होंने बड़ा अच्छा प्रोग्राम अपने नज़ामत में प्रोग्राम को चलाया। हम इन सब का शुक्रगुजार हैं। और इस मौके पर, इस महफिल नूर में, इस मौके पर जिस बुनियादी चीज़ पर इस पर तवज्जो दी जाती है, आमाल के, अकायद के और अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम और तरबियत पर जो रोशनी डाली जाती है अशार के ज़रिए से, तकारीर के ज़रिए से, और अपने अपने अंदाज में शुअरा कराम मेहनत करते हैं, बयान करते हैं, पढ़ते हैं, कलाम पेश करते हैं, उससे हम सब मुस्तफ़ीज़ होते हैं। एक खाकसार भी उसी चीज़ को हासिल करने के लिए, इस्तिफ़ादा हासिल करने के लिए हाजिर होता है। और इस महफिल के रूह रवां जनाब सलाहुद्दीन अबू बकर साहब का अगर जिक्र न किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बड़ी खयानत होगी, और उनकी कमी यहाँ पर वाकई महसूस होती है कि बड़ी शख्सियत थी, अपने आप में वो एक शख्स नहीं शख्सियत थी, वो एक तहरीक थी जिन्होंने बहुत बड़े काम को अंजाम दिया, फलाही काम को अंजाम दिया और रिफाई काम को अंजाम दिया, और बुनियादी चीज़ों पर उनकी पहली नज़र रहती थी। और इस्लाह के मौजू से उम्मत का दर्द उनके अंदर था, कौम का दर्द उनके अंदर था, मिल्लत का दर्द उनके अंदर था। वो वाकई ऐसे
साबिर और शाकिर बंदे थे, जिन्होंने कभी अपनी ज़बान से अल्लाह के आगे और लोगों के आगे अपना शिकवा ना किया। अपनी बीमारी, आज़ारी, अपनी अलालत में कभी भी उन्होंने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह। जब पूछा मौलाना क्या हाल है हज़रत, मैंने मौलाना बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी कोई कमी नहीं है, बस अल्लाह ताला से दुआ फरमाइए हमारी जो तमाम ख्वाहिशात हैं कौम मिल्लत के बारे में वो पूरी हो जाएं और हम उसमें जहाँ तक बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं अल्लाह उसको कबूल फरमा ले। उनकी एक फिक्र थी और वो बड़ी फिक्र थी, वो अपने आप में एक तहरीक थी। उन्होंने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, बड़े फिक्र के साथ, बड़े खुलूस के साथ। उनके खुलूस की बरकतें हैं जो आज हम इस महफिल में देखते हैं कि वो नीयत उनकी थी, खुलूस उनका था। उस खुलूस की बरकत से हम सब इकट्ठे हैं और यहाँ पर जो जमात इकट्ठी होती है वो मुखलिसीन की जमात ही कहलाती है, क्योंकि जहाँ पर मजमा ना हो, जहाँ पर सामईन की तादाद ना के बराबर हो, वहाँ पर अवाम और पढ़ने वाले शुअरा कराम वो हो जो बड़े बड़े मजमे के सामने बड़े बड़ी महफिलों में उनका नाम लिया जाता हो, उनको दुनिया जानती हो, और वो सब सिमट कर करके महफिल नूर में छोटी सी महफिल को आकर के सजाते हैं और आकर के अपने इखलास के साथ, अल्लाह लिल्लाहियत के साथ, अल्लाह के लिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, अल्लाह की मोहब्बत में हाजिर होते हैं। ये सब मुखलिसीन की जमात में से लोग हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको यहाँ आने को, यहाँ बैठने को, यहाँ के पढ़ने को, सुनने को हमारे लिए हम ज़रिया मग़फ़िरत बनाए, इसको कबूल फरमाए और हम तमाम अहले महल्ला के लिए, तमाम दुनिया के लिए इस मैसेज को, इस यहाँ से निकलने वाली हर एक बात को तमाम दुनिया के लिए मुस्तफ़ीज़ हो, तमाम दुनिया से मुस्तफ़ीज़ हो, तमाम दुनिया के लिए एक अजीम दावत के तौर पे ये निकले और अल्लाह के तमाम बंदे तक ये मैसेज जाए। एक छोटी सी महफिल से बहुत बड़ी चीज़ निकलती है, बहुत बड़ा कारनामा यहाँ से होता है कि अल्लाह तबारक व तआला उन जमात के चंद लोगों से वो काम लेते हैं जो बड़ी बड़ी महफिलों से बड़ी मुश्किल से मिल पाता है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम हमारे छोटे भाइयों को, हमारे बड़े भाइयों को, सबको सलामत रखे और सबकी दुआएं हम चाहते हैं अपने लिए भी और सबसे गुजारिश भी करते हैं कि महफिल नूर के लिए भी, मजलिस ये सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के सदर शहाबुद्दीन खां साहब के लिए, सलाहुद्दीन खां साहब के लिए भी दुआएं फरमाएं, इन सबों के लिए कि जो लोग इस महफिल नूर को सजाते हैं और खुलूस के साथ इसको तसल्जुल के साथ चलाते रहते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको मुखलिस बनाए और हम सब की जो लोग यहाँ हाजिर होते हैं उन सब के तमाम जो अखलास के साथ कलाम पढ़े जाते हैं अल्लाह ताला उनको कबूल अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और मोहब्बत में इजाफा फरमाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दर्जे का ताल्लुक़ होना चाहिए उस ताल्लुक़ की बुनियाद पे जिस तरह के अच्छे से अच्छे शेर और ज़रा बेहतरीन से बेहतरीन अशआर सुनने को मिलते हैं, ऐसी ऐसी नसीहत आमेज़ चीज़ें मिलती हैं जो वाकई जल्द अज़ल किताबों से और आवाज़ों से ना और चीज़ों से मिल पाती हैं। एक शायर ने कहा था, न आवाज़ों से न किताबों से नज़र से पैदा दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। तो वाकई यहाँ पर बुजुर्गों का सिलसिला शुरू होता है और बुजुर्गों की नज़र से जो दीन की रमक निकलती है, पता चलता है कि दीन का रास्ता कौन सा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म किस रास्ते को हमें किस तरह बुलाते हैं, मुस्तनद रास्ता कौन सा है। तो मुस्तनद रास्ते वही माने गए जिनसे होकर तेरे दीवाने गए, लौट आए जितने फरजाने गए, ताबे मंजिल सिर्फ दीवाने गए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया के और इस महफिल के कन्वीनर जनाब शहाबुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, सिर्फ एक शेर के साथ के वक्त ज़्यादा हो चुका है कि ज़िंदगी भर की शनासाई चली जाएगी, घर बसा लूँगा तो तन्हाई चली जाएगी, तेरे बारे में कोई राय कहाँ से लाऊं, झूठ बोलूँगा तो सच्चाई चली जाएगी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ शहाबुद्दीन साहब से कि वो आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुन्नी बोर्ड ऑफ इंडिया की जानिब से निज़ाम बाग में माह मुहर्रम के ये 10 रोज़ा जलसे बौनवान दीन का पैगाम दुनिया के नाम मुंतकिल होते रहते हैं। आज इस महफिल नूर में हमारे बीच में शोरा इकराम ने नातिया कलाम पेश किए। इनकी जज्बे को
इनके खुलूस को, मोहब्बत को मैं सलाम पेश करता हूँ। इनके आने से महफिल नूर में रौनकें होती हैं, इनके कलाम से कायनात में रोशनी होती है। यहाँ पर ये लोग जिस तरह से, जिस मोहब्बत से, जिस खुलूस के साथ अपने अशार, अपने कलाम पेश करते हैं, इसका कोई बदला नहीं, कोई, ये सब इनके खुलूस और मोहब्बत का है सिला। बे महफिल नूर सजती है। हम अपने रहनुमा, अपने बड़े भाई मरहूम सलाउद्दीन अबू बकर की उस कोशिशों और काविशों के बदौलत इस महफिल को सजाते हैं, संवारते हैं और कोशिश करते हैं कि उनके बनाए हुए नक्श कदम पर चले, जैसा कि उन्हीं ने हमको सिखाया। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। शोराए किराम अपने कलाम से हमको वो चीज़ें सिखाते हैं, वो चीज़ें बताते हैं जो शायद हमारे इल्म में नहीं है या नहीं सीख पाए किसी वजह से, या नहीं समझ पाए अपनी मसरूफियातों में। लेकिन वो जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ बताते हैं, वो हदीस शरीफ का, अल्लाह के हुक्म का मफ़हूम होता है और सीखने वाले उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। अल्लाह हमें तौफीक दे कि हम अमल कर सकें इन बातों पे, इनके बताए हुए उस पैगाम को जो हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सब के लिए, पूरी कायनात के लिए बताए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक दे। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे घरों को मुनव्वर और रोशन करती हैं। कुरान और हदीस का जिक्र जिस जगह, जिस महफिल में हो, अल्लाह ताला अपने नेमतें उस महफिल में, उस जगह पे नाज़िल करती हैं। मैं तहे दिल से इन सबका शुक्रगुजार हूँ, खुसूसी तौर पे जनाब साबित लखनवी, जनाब कमर सीतापुरी, जो बहुत दूर से, बड़े खुलूस से हमारे महफिल को सजाने संवारने में आते हैं। जनाब रफत शहरा साहब, जिनकी मोहब्बतें और काविशें और कोशिशें हमारे साथ मुसलसल रहते हैं और हर जगह हमारी हौसला अफजाई, हिम्मत अफजाई करते हैं। जनाब मौल लखनवी साहब, इनका भी मैं शुक्रगुजार हूँ। बहुत अच्छे अशार पढ़ते हैं और उन महफिलों का जो खासकर मुहर्रम और रबीउल अव्वल की होती है और बरसा से हो रही है, लेकिन चंद अशार, चंद शेर ऐसे होते हैं जो लोगों को, जैसे अभी हमारे नाजिम साहब ने कहा कि वो भूले नहीं भूलते, वो शेरों के जरिए याद रखे जाते हैं लोग। तो मौत साहब के भी बहुत से अशार ऐसे हैं जिनको लोग याद करते हैं, हमसे जिक्र करते रहते हैं। और मोइज़ रहमान साहब, जो अपनी बहुत मसरूफियात के बावजूद भी हमारे सरार पर आए, मैं इनका शुक्रगुजार हूँ, इनकी मोहब्बतों का। बहुत अच्छे कलाम पढ़ते हैं, बहुत तरन्नुम से, बहुत खूबसूरत लहजे में, और पूरी महफिल पे कैफियत से तारी हो जाती है जब ये पढ़ते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला और तरक्की दे और अच्छी महफिलों को इसी तरह संवारते और सजाते रहे। और जनाब जलाल लखनवी अपना कलाम को सुनाया, बहुत ही बेहतर और बहुत खूबसूरत अंदाज में वो भी पढ़ते हैं। जनाब जलाल लखनवी भी, और शुरू से ही जुड़े रहे, बचपन से अपने तमाम तहरीकों से और तमाम
प्रोग्रामों से उन्हें तमाम मुशायरों में शिरकत करते हैं, उनका शुक्रिया। और हमारे फ़ाहिमी लखनवी जो हर चीज़ में माशाअल्लाह से बहुत मुदरिक, बहुत कुशा रहते हैं और हर मकसद में अपने माशाअल्लाह अल्लाह इनको कामयाब करे, कामयाबी रहते हैं बहुत कोशिशों से और जज्बे से, बड़े खुलूस से, शुरू से और आखिर तक के महफिल को बाकायदा तौर के ऊपर अंजाम देते हैं। अल्लाह ताला उनको इन नेकियों का अज्र दे। और हम सब चूँकि रात अब ज़्यादा हो रही है, इसलिए बात को मुख्तसर करके शुक्रगुजार हैं तमाम शोराए किराम का, और अल्लाह ताला उन सब की सेहत में, उम्र में इजाफा करे, अल्लाह ताला उनको सेहतियाब रखे और तमाम मिल्लत को अल्लाह ताला खुश रखे। हमारे उलमाए किराम जनाब कफील अहमद नदवी साहब, जिन्होंने अपनी मसरूफियात के बावजूद वक्त निकाला और इस महफिल को रौनक बख्शी और अपनी तकरीर से एक लफ्ज़ा सतारी कर दिया, सब पर बहुत अच्छी तकरीर की। अल्लाह ताला उनको भी नेकी का अज्र दे और हम सबको अमल की तौफीक दे। इसी के साथ इस महफिल का अख्तिताम होता है। कल इंशाअल्लाह फिर शाम को बाद नमाज इशा महफिल चलेगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।